Paper variant 30 P1 MCQ AS chemistry, and the variant is June 2021. Question number 1. MCQs. Compound X, organic compound with this much percent carbon, this much percent hydrogen, and this much percent oxygen, this much percent of chlorine. Empirical formula you need to use. It's a simple question. Carbon, hydrogen, and oxygen, and chlorine. This is the only place where we need to write oxygen O and chlorine Cl. Otherwise, we need to write diatomic form. Okay? And 3.8 and 20.4 and similarly 45.2. We need to divide by their AR. AR of oxygen, AR of hydrogen, and AR of 12 carbon. Now, 30.6 divided by 12, 2.55. It will be 3.8. Then 20.4 and divided by 16. So 1.2, 75, and 45.2 divided by 35.5. Again, 1.273. So we need to divide by smallest value. The smallest value should be that is this one, 1.273, 1.273, and 1.273, and 1.273. Its answer will be 1. It is also approximately 1. And now 3.8. 3.8 divided by answer. It's a 2.98, which is approximation 3. And similarly, 2.55 divided by 2.98. 2.55 divided by 1.273. It is 2. Exactly. The answer is C2, S3, O1, and Cl also 1. Answer is this one. Next question. A sample of propane mass is this completely combusted in excess of oxygen to produce what volume of carbon dioxide is produced. So it's quite simple. You need to write a balanced chemical equation. C3H8, when completely combusted, it will give you 3 CO2 and 4 water. And similarly, for the balancing of oxygen, 6 and 4. So this is balanced chemical equation. About this and this, we need to relate these two things. The volume of carbon dioxide is given by the unit you had, that is decimeter cube. We will write twice decimeter cube. And similarly, इसके बारे में जो information, that is gram. About this one. So this line is from question 9.61, and it will be X. And this will be from question. If the mole were तो 1 लिखना था, अब मोल नहीं मास इसका, तो मास होगा 36 plus 8 means 44. Let me cross check. 36 plus 8, 44. And similarly, if moles were given to 3 लिखता, volume दिया हुआ है तो 3 into 24. So the answer becomes 72 into 9.61 and divided by 44. So 15.72. 15.72 is the answer. Question number 3. Which atom has same electrons as ammonium ion? So ammonium ion is NH4 positive. Now, nitrogen is 7 and hydrogen is 1. तो electrons count करें तो nitrogen की हो जाएंगे 7, इसकी वजह से हो जाएंगे 4 and total मिला के हुए 10. Positive sign indicate 11. And positive sign indicate that 1 electron is lost. It means -1. तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. तो 10 इलेक्ट्रॉन में किसके पास होते हैं? इसमें 12 होते हैं, इसमें 11 होते हैं, इसमें 8 होते हैं. The 10 is this one. The next question is shape of molecule. Increasing bond angle के हिसाब से बताना है आपको. तो कार्बन के पास लोन पे 2 3 4 हैं. तो 4 में जो एंगल होता है that is 109.5.
सिमिलरली कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते, तो 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं आपके पास 120, एंड यहाँ पर यू नो कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो यू हैव 4 थिंग्स 1 2 3 4, तो 4 का मतलब हो गया 109.5 एंड 2 लोन पेयर माइनस 2.5 and minus 2.5, the answer is 104.5. It says K, the smallest to largest. The smallest is 104.5, Z is should be smallest, and then X, and then Y. A is the correct answer. Next question. Description about the bonding of substances given. Strong bond between atoms, permanent dipole of attraction. Strong bond and permanent dipole. It has temporary dipole, it is non-polar due to symmetry. It has a permanent dipole. अच्छा, permanent dipole क्या है, इसमें काट रहा हूँ क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें. It has a hydrogen bond. It has a permanent dipole. It has a van der Waals. Option पहले भी खत्म हो गया. Right. Second वाले में strong bond, weak forces between molecules. तो weak forces means van der Waals. तो van der Waals इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें van der Waals है. BGW. And the third is a hydrogen bond. Hydrogen bond है आपके पास इसमें और इसमें, तो आंसर बन जाएगा C. Quite simple question. Never found in elements. तो एलिमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, या तो मेटल्स होंगे, अगर मेटल्स होंगे तो उनमें मेटालिक बॉन्ड हो जाएगा, अगर नॉन मेटल्स हो जाएंगे तो उनमें आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, और अगर वो बॉन्डिंग नहीं कर रहे नॉन मेटल जैसे नियॉन है एंड नियॉन है, तो उनमें कौन सी फोर्स हो जाएगी, वान डेर वाल्स फोर्स हो जाएगी. आयनिक नहीं हो सकता कभी भी किसी एलिमेंट, आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एंथैल्पी. तो थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी इसके लिए, तो जगह हमारे पास है, चले नीचे कर लेते हैं. सीजियम इट्स अ गैस and bromide also gas and gives you cesium bromide solid. This we need to find. Then he says ke solution is ke if it dissolve in sufficient water to produce its aqueous particles, this one and bromide aqueous, इसे कहते हैं solution. The value is 2.59. The next one is a hydrogen. हाइड्रोजन में क्या होता है, गैसियस से बनता है, गैसियस से एक्वस, तो आपके पास आ जाएगा गैस से एक्वस, इसकी वैल्यू दी है उसने -276. एंड सिमिलरली फॉर इट्स हाइड्रोजन, these two are hydrogen. गैस टू हाइड्रोजन में क्या होता है, गैस टू एक्वस होता है, एंड सॉल्यूशन में क्या होता है, सब्सटेंस की जो भी फॉर्म हो टू एक्वस होता है. नाउ इसकी वैल्यू जो है दैट इज -335. Now we need to solve it. सॉल्व करने के लिए एक लाइन हम खींच देंगे इसे. ऐसा करने से ये एरो मेरे साथ है, ये भी साथ है, ये अगेंस्ट आ रहा है, उसकी साइन चेंज कर देंगे और फिर बाकी जो है सॉल्व हो जाएगा. x इज इक्वल हो जाएगा -276 एंड -335 और उसकी साइन चेंज कर देंगे -25.9. इसकी साइन चेंज करनी है तो -276 -335 and -25.9, -636.9. 636.9 is a correct answer. Next question. Before starting question, read the options. It was looking weird, but it's very simple. Now he's asking you about this one. X क्या चीज है? See this one. हुआ क्या? He's giving you formation कार्बन डाइऑक्साइड. तो फॉर्मेशन में क्या होता है, एलिमेंट्स इनसे मिलके आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलके फॉर्मेशन है. तो फिर X क्या होगा? इसमें तो वाटर बन रहा है, फॉर्मेशन हो रही है. तो किस चीज हो सकती है? वॉट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स है, उससे बन सकता है. सो X इज व्हाट? X इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ H2O. नंबर 1. नंबर 2, इफ यू सी हियर, यहाँ पर तो 1 मोल बन रहा था ना इसका, तो इसलिए फॉर्मेशन लिखा था. मेरे पास 2 मोल बन रहा है, तो इसलिए इंटू 2 भी करना होगा. तो 2 इंटू एंथैल्पी फॉर्मेशन. ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव लगा दिया उसने. तो इट इज एक्चुअली
this one. Next question. Copper dissolved in nitric acid, producing blue solution, this one, and water, nitrogen oxide are only product. How many moles of acid will react with 3 moles of copper? So this question थोड़ा सा tricky है, हल्का सा, हम जरा साइड पे काम कर लेते हैं. एक तो उसने ये कहा है कि आपका जो नाइट्रिक एसिड था ना, उससे एक तो बन गया आपके पास कॉपर नाइट्रेट, समझ आती है, एक उससे नाइट्रोजन ऑक्साइड ही बना और वाटर भी बना. ये जो दो बातें बोली है ना इसने, ये असल में नाइट्रेट से बना है और ये रिडॉक्स है, तो इसलिए हम रिडॉक्स की तरफ चलते हैं. असल में हाइड्रोजन को तो कुछ नहीं होगा, यही नाइट्रेट जो है एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू व्हाट, NO. तो ये हमारे पास एक काम हो गया. बैलेंसिंग के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाते हैं. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर वाटर लगाए. अब कितने लगा देंगे, 2, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए. नाउ ऑक्सीजन 3, एक इसमें था, तो 2 वाटर लगाने से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे H+ लगा देंगे, 4H पॉजिटिव, ये भी हो गया. ना चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन लगाते हैं मोर पॉजिटिव साइड पे. तो इस तरफ तो चार्ज आपको पता है कि 0 है, नो चार्ज. इस पे चार्ज पॉजिटिव 4 है, इस पे -1, तो नेट आ गया आपके पास पॉजिटिव 3. तो इधर 0 है, इधर पॉजिटिव 3. मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, कितने, जितना डिफरेंस होगा. तो हियर यू नीड टू प्लेस 3 इलेक्ट्रॉन्स. The other thing was actually copper was converted into copper metal was converted into copper 2. इसमें कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट जो है दैट इज +2. आपको नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये 2 जो है यहीं से तो आया है, ठीक है. नाइट्रिक के ऊपर चार्ज 1 होता है, तो ये था. तो इसमें मोर पॉजिटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं. डन हो गया, ये भी खत्म हो गया. अब दोनों को ऐड करने से पहले क्या करना होता है, आपको इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना होता है. तो हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने हैं. ये यू कैन सी 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बराबर करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल नंबर. तो दैट नंबर इज, इसको और इसको मैं इसको कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 8, और ये बन जाएगा आपके पास 6, और ये बन जाएगा आपके पास 2, और ये बन जाएगा आपके पास 4. इसकी 3 से करना होगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपके पास 3, ये बन जाएगा आपके पास 3, एंड ये बन जाएगा आपके पास 6. अब ऐड कर देते हैं, कोई चीज कैंसिल आउट हो रही है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कैंसिल आउट हो रहे हैं. तो 2 नाइट्रेट, 8H पॉजिटिव, 3 copper gives you 2 nitrogen monoxide, 4 H2O and 3 2 positive. ना देखिए थोड़ा सा ट्रिक इसमें क्या था, इसमें अभी भी बैलेंसिंग में आपको बेवकूफ बना रहा है. वो क्या बेवकूफी है कि अगर मैं नाइट्रेट के हिसाब से देखूँ तो नाइट्रेट से तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से नाइट्रेट मुझे 2 चाहिए, एक 3 कॉपर के लिए, 3 कॉपर और 2 नाइट्रेट. तो दिल में ख्याल आएगा कि नाइट्रिक एसिड 2 चाहिए. हाँ, असल में कुछ नाइट्रेट आर कन्वर्टेड टू दिस वन एंड कुछ रिमेन एज इट इज. आपने पीछे फार्मूला देखा था, some will remain as it is, some will be converted to this. So all nitrate are not oxidized, but this is a clear indication because nitric acid is monobasic acid, it has 1H+. तो that is why, तो अगर हमारे पास जितने ये होंगे उतने ये होंगे, तो इसलिए आपके पास इसके अगर 3 हो तो इसके 8 चाहिए. And the question was same. He say 3 moles of copper, how many moles of acid? So let's see. 3 के लिए 8. So it means you need 8 nitric acid for 3 moles of copper. And for that you will get balanced chemical equation. तो वैसे तो आंसर हो गया, तो अगर मैं इसको बैलेंस करके दिखा दूं तो ये हो जाएगा आपके पास. अब ये सब कुछ जो है एक साथ ही हो जाएगा, राइट. और सब चलते हैं आपके पास, फिर आ जाएगा 2 NO कन्फर्म फॉर श्योर, 4 H2O भी रहेगा फॉर श्योर, एंड 2 CuNO3 बस ट्वाइस आ जाएगा. सॉरी 2 नहीं है, 3 है, 3. तो नाउ यू कैन सी नाइट्रेट 6 and 2 8 and all things will be balanced. So 8 is our answer. थोड़ा सा tricky था लेकिन done. Next question quite simple. We have given you initially the moles of reagent product both. So let's start. N2, 3H2 reversible with 2 NH3. Initial starting moles are 2 and 6 and 2.4.
एंड इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इट इज 2 minus x, it will be 6 minus 3x, and it will be 2.4 plus 2x. Now he give you the hint. Hint is what? It is found that this much moles of nitrogen present at equilibrium. तो आपको बता दिया उसने, किसके बारे में बताया है, उसने बताया आपको इसके बारे में। इक्विलिब्रियम पे इसके जो नाइट्रोजन के मोल्स थे वो इतने थे। तो लेट्स इक्वेट इट। तो जिसको हमने 2 minus x सोचा वो कह रहा है इसको इट इज 2.32। तो x को उधर ले जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, 2 minus 2.32 इज इक्वल टू माइनस x हो जाएगा। तो जो कम सॉरी प्लस x हो जाएगा उस तरफ, और x हमारे पास आ जाएगा माइनस करके 0.32। नाउ वी नीड टू सब्स्टिट्यूट इट। तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसकी। तो 2 minus minus 0.32 and 6 minus 3 into negative 0.32 and 2.4 plus 2 into minus 0.32. It will become 2.32. It will become 9.96, and this will become 1.76. स्पेस के ऊपर 1.76 प्रोडक्ट था, ऊपर आएगा, एंड इसकी पावर 2 बन जाएगी। नीचे आपके पास 2.32 आएगा, इसकी पावर आपके पास 1 आएगी, एंड 9.96 सॉरी 6.96 इसकी पावर आपके पास आ जाएगी 3। तो ऊपर आना चाहिए ये, ठीक है, ये तो गलत हो गए। नीचे आपके पास 2.32 एंड फिर 6.96 पावर 3। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, reaction is reversible and exothermic. Now what he wants, greatest yield of nitrogen monoxide, मतलब इसकी yield बनाना चाह रहा है, means he want the reaction to move in forward direction. तो फॉरवर्ड को एक्सो हो, फॉरवर्ड बनाने के लिए आपको टेम्परेचर जो है वो लो यूज करना पड़ेगा, एंड प्रेशर के लिए क्या है आपके पास, यहाँ पर है 9 मोल्स, जबकि यहाँ पर आपके पास गैस के हैं 10 मोल्स। तो यू नीड टू रिड्यूस प्रेशर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर टुवर्ड लेस मोल्स, सो बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 12. The height of the peak of the curve, this is a new one, distribution represent number of molecules with most probable energy. He's talking about this one. कि आपके पास जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है ऐसी, इसमें ये जो हाइट होती है ना, so this is most probable energy x, and these are the particles which have most probable energy. Number of molecules that have most probable energy. If the sample of gas decrease, temperature is decreased without changing number of molecules. So you got to correctly describe the feature of Boltzmann distribution gas at temperature when decreased. तो क्या होगा? The value of most probable energy will stay same. No, if you decrease the temperature, so this will move here. तो जब इस तरह मूव करेगी, आपकी जो x की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, स्टे सेम नहीं, गलत। The number of molecules with most probable energy will increase. Yes. Now the height is different, and now these are the particles which have most probable energy. तो उनका नंबर जो है वो इंक्रीज कर दिया है. This is true. And the third one is the area under distribution curve will decrease. ऐसा नहीं होता, area under curve remains same. जो इसके नीचे जितने स्क्वायर्स आ रहे होंगे, that number of molecule remains same. तो ये वाली बात गलत है. And number of molecule with at a higher energy and distribution will stay same. No, this will decrease. He says कि ये same number रहेगा. No, it will decrease actually. तो ये सारी बातें गलत हो रही हैं. P is the correct answer.
Next, ammonia exists as a simple covalent molecule. This one, ammonia can react with a suitable reagent to form product containing ammonium. Ammonia can also react with a suitable reagent to produce amide. Now, you see ammonia के साथ हो क्या रहा है? अमोनिया के पास H है, अगर इसको एसिड मिल जाए तो फिर ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव, और अगर अमोनिया को बेस मिल जाए सूटेबल की जो बात कर रहा है, तो ये इसका उसका H और ये मिलके वाटर बना देंगे, और इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगा, NH2 नेगेटिव बन जाएगा। ये दो बातें हो रही हैं। अमोनिया सूटेबल अच्छा है। विच ऑफ फॉलोइंग स्पीशीज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, तो एक्वस में आपको पता है कि अमोनिया इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है और इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं वहीं से हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है, तो आपके पास यहाँ से ये बन जाएगा एक्चुअली NH4 पॉजिटिव एंड OH हो जाएगा। तो सम मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया विल कन्वर्ट इनटू दिस वन एंड सम रिमेन एज इट इज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हो जाएंगे। देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स, सम ammonia when added they will become NH4 positive and water will become OH negative, and some ammonia will remain as it is। concentrated ammonia में water ज़्यादा नहीं होता, तो कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल भी रहेंगे। तो अमोनिया मॉलिक्यूल ओनली तो नहीं होगा, अमोनिया माइन भी बनेंगे, ये भी होगा। अगर तो डाइल्यूट कहता तो फिर सारे के सारे अमोनिया बन जाते, नो डाउट, लेकिन एक्वस का वर्ड यूज किया, इट कैन बी कंसंट्रेटेड, कैन बी डाइल्यूट। तो दोनों केसेस में इफ द वाटर आर लेस तो सारे अमोनिया फिर वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं होंगे, बिकॉज फॉर ईच कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू अमोनियम आयन वी नीड वाटर। तो वाटर अगर कम होगा तो फिर ये काम नहीं हो सकता, मतलब कॉन्सेंट्रेट में। तो एक्वस की वजह से हम डाउट में इसे ठीक करेंगे। विच प्रॉब्लम कैन रिजल्ट टू मच नाइट्रिक फर्टिलाइजर अप्लाई टू बाय फार्मर। तो यूट्रिफिकेशन का मेन तो यूट्रिफिकेशन होता है, देखते हैं क्या है। नॉट ऑल अमोनियम यूज प्लांट एक्सेस सॉइल एल्कलाइन। तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि अमोनियम आयन जो है ये एसिडिक होता है। हाँ, एसिडिक कर सकता है, ये बात तो सही थी, अब एल्कलाइन कर देगा तो ये बात गलत हो गई। रिवर फॉर्म प्रेसिपिटेट, तो ये भी सॉल्युबल होता है, अमोनियम भी सॉल्युबल होता है, नाइट्रेट भी सॉल्युबल होता है, तो दे आर हाईली सॉल्युबल। फर्टिलाइजर की पहचान है कि अमोनियम ऑल सॉल्युबल एंड नाइट्रेट ऑल सॉल्युबल। तो ये वाली बात गलत हो गई। डिसॉल्व इन ग्राउंड वाटर विच इवेंचुअली यूज्ड ड्रिंकिंग, ये वाली बात सही हो सकती है, क्योंकि सॉल्युबल है हाईली, तो पानी में तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो चैनल के जरिए पानी वापस आ जाएगा। अमोनिया इज प्रोड्यूस एट लोअर पीएच, नो, अमोनिया तो उस वक्त प्रोड्यूस होगी व्हेन अमोनियम आइड रिएक्ट विद व्हाट, OH। OH की पीएच क्या होती है, बेसिक, और बेसिक क्या होती है, हाई पीएच होती है। तो लो पीएच तो आपका मतलब हो गया कि एसिड में, एसिड में तो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा, ये इसी फॉर्म में रहेगा, अमोनिया जा नहीं सकती, तो ये वाली बात गलत है। हाई पीएच पे हो सकता था, तो दिस इज आल्सो सी इज अ करेक्ट आंसर। When descending group 7 chlorine iodine, which statement is correct? Hydride become less thermally stable, yes, true, because अच्छा as they become weak reducing agent, no, down वाले ज्यादा अच्छी reducing agent थे। Iodide was a good reducing agent than bromide and chloride, so this is weak reducing agent वाली बात जो है गलत हो रही है यहाँ से, ये वाली बात सही थी। मोर थर्मली स्टेबल गलत है, नीचे लेस थर्मल स्टेबल हो जाते हैं, अच्छा जल्दी टूट जाता है। वोलेटिलिटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यस ट्रू। वनरेबल फोर्सेस इंक्रीजेस, यस ट्रू, दोनों बातें ठीक है। वोलेटिलिटी इंक्रीजेस, नो, नीचे वाले लेस वोलेटाइल होते हैं, सॉलिड होते हैं, ऊपर वाले गैसेस होते हैं। A powder known to contain sodium halide or a mixture of sodium halide, ठीक है, उसमें एक हेलाइड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, पहले जो पीटी बन गए। When concentrated ammonia is added, concentrated ammonia he has added, जिसकी वजह से क्लोराइड एंड ब्रोमाइड दोनों डिसॉल्व हो सकते हैं। The precipitate partially dissolved, इसका राइट पार्शियली बोला है, उसकी वजह फिर क्या है, आयोडाइड के पार्शियली आयोडाइड इंसॉल्युबल रहते हैं, तो इसका मतलब उसमें मिक्सचर थी,
तो आयोडाइड के साथ कोई और भी होगा, तो दिखा देते हैं आपको। पहले आपके पास यहाँ पर क्लोराइड भी था एंड आयोडाइड भी था, और जब सिल्वर आया तो उसने इसके साथ भी पीपीटी बना दी है, इसके साथ भी पीपीटी बना दी है। अब इसके जो है व्हाइट पीपीटी थे, इसके जो है येलो पीपीटी थे। फिर जब आप इसमें अमोनिया ऐड कर दिया तो बस फिर इसमें जो है आपके पास AgI के येलो पीपीटी बच गए होंगे। तो अगर पहले इसका 5 ग्राम मास था, अब इसका मास जो है 2 ग्राम रह जाएगा, क्योंकि उसमें से क्लोराइड के डिजॉल्व हो चुके हैं, तो इस पर वर्ड यूज कर रहा है पार्शली डिजॉल्व हो जाएंगे। तो आयोडाइड तो है कंफर्म एंड साथ उसके क्लोराइड हो जाएगा। आयोडाइड ओनली इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो कहता कि पार्शली डिजॉल्व नहीं, वो कहता रिमेन अनडिजॉल्व, तो फिर हम उसको आयोडाइड को टिक कर देते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? डॉक्टर यूज वेरी इनसॉल्युबल मैग्नीशियम सल्फेट, बकवास कर रहा है, इट इज हाईली सॉल्युबल। Farmer can lower the pH of soil by spreading this. इससे लो तो नहीं होगी पीएच, आपकी पीएच से हाई उसको यूज कर सकते हैं इसको। ये तो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, इट न्यूट्रलाइजेस एसिड, सो पीएच विल इंक्रीज एक्चुअली। ठीक है, कैन लोअर तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। स्टूडेंट कैन टेस्ट सोल्यूशन ऑफ सल्फेट यूजिंग बेरियम नाइट्रेट। ठीक, बिल्कुल सही है, दिस इज राइट कि बेरियम को टेस्ट करने के लिए नाइट्रेट सल्फेट एंड सल्फेट को टेस्ट करने के लिए बेरियम। ट्रू। एंड insoluble barium hydroxide, this is wrong, it is soluble. Question number 18. X, a solid X was placed in excess of liquid Y. Colorless gas given off and white PPT was seen. The precipitate of not X, what could be? अच्छा जी, ये दोनों पानी में soluble ही नहीं होगा, insoluble है ये। उसने कहा कि excess कलरलेस गैस बन गई, गलत हो गया। कैल्शियम से आपके पास डाइल्यूट एसिड था, इससे आपके पास बन जाएगी हाइड्रोजन गैस और व्हाइट पीपीटी भी बन जाएंगे। क्यों? आपके पास इन दोनों की रिएक्शन करवाने से आपके पास बन जाएगा, एक तो बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट एंड एक बन जाएगी गैस। तो गैस तो होगी आपके पास कलरलेस गैस, और ये जो है आपके पास पीपीटी होते हैं ऑल सल्फेट सॉल्युबल, ऑल सल्फेट्स सॉल्युबल एक्सेप्ट कैल्शियम, बेरियम एंड लेड। तो कैल्शियम का सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, तो उसकी वजह से पीपीटी आगे होंगे। सो दिस इज करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम सल्फेट इज सॉल्युबल एंड स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज आल्सो सॉल्युबल, तो ये बाकी ऑप्शन सही नहीं है। Two oxides of third period element added separated to water, both react to form colorless solution. colorless solution बन जाए, ये तो insoluble है, काटते हैं इसको। Al2O3 पानी में ऐड कर रहा है, ये insoluble होता है, colorless solution कहाँ से बनेगा? सैंड भी इनसॉल्युबल था, सैंड भी इनसॉल्युबल है, तो सारे कट गए, आपके पास बचा ये। और बाकी जो चेक करने का क्या है, इससे आपके पास बेसिक बनेगा, आपको पता है, इससे आपके पास एसिडिक बनेगा, और ये इसने लिखा था गैल्क्लाइन एंड अदर इज एसिडिक। इनमें से कौन स्टीरियोमर शो करेगा, मतलब सिस्टांस या ऑप्टिकल? मिथाइल टू ब्यूटीन, तो ये मैंने बना दिया ब्यूटीन, तो 2 पे लगा दिया ये और 2 पे लगा दिया मिथाइल, तो ये तो असल में दोनों सेम सेम है, सिस्टांस नहीं कर सकता, काटते हैं इसको। इसको देखते हैं, प्रोपेनॉल और 2 पे क्लोरो लगा दिया और 1 पे लगा दिया OH, तो इसको पूरा करते हैं, ये अलग है, Cl is different, this is different and this is also different, so all they are different, so this is a chiral carbon, this can show stereomers. 2 carbon containing product result reaction of alkene Z with hot KMnO4. One of the product is gives orange PPT, तो orange PPT बना रहा है 2,4-DNPG के साथ, एक तो बन गया उसमें कीटोन। वैसे भी आपको पता है कि जब एल्कीन का कॉन्सोनेट KMnO4 रिएक्शन हो, या तो कीटोन बनता है या आपके पास ओइक एसिड बनता है या आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाता है, बस ये 3 प्रोडक्ट होती हैं। दादर gave a gas which gave white PPT with aqueous calcium hydroxide, बताओ इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को
इसमें कौन सी गैस होगी? गैस एक ही बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, YPPD, मतलब एक ये बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक कार्बन का पीस यहाँ से कटेगा, ये कि कार्बन का हो, तो इससे आपके पास बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा आपके पास कीटोन बनना चाहिए, तो कीटोन बनने के लिए आपके पास इधर उधर कार्बन लगे होने चाहिए, तो फिर जाके कीटोन बन सकता है। चले खेलते हैं ब्यूटुइन। तो ब्यूटुइन पे हम चले इधर, ये टू इन कर दिया इसको। इसमें हमारे पास दोनों केसेस में एसिड बन जाएगा, एसिड बनेगा दोनों। मिथाइल प्रोटीन उतारते हैं इसको, ये प्रोटीन हो गया, इधर मिथाइल लगा दिया, इधर से कट करेंगे तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से करेंगे तो कीटोन बन जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले को चेक करना है तो करवा देता हूँ चेक। ये कह रहा है ब्यूटुइन, तो ये ब्यूटुइन पे चले गए और दो पे मिथाइल भी लगा दिया। यहाँ से कट करूंगा तो एसिड है, यहाँ से करूंगा तो कीटोन है, ये भी नहीं है। एंड प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो प्रोटीन में आपके पास यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि H है इसलिए ये एसिड बन जाएगा, तो ये भी गलत है। तो आपके पास बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जो है मैकेनिज्म शो कर रहा है ये, और इसमें आपको पता है कि मार्कोव-निकोफ रूल के हिसाब से hydrogen should be reached to that carbon which already have more hydrogen. So this is not applicable here. Both carbon contain same hydrogen, तो मसला नहीं है। अच्छा, पहला काम क्या होगा इसमें? होगा ये कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ब्रोमीन के ऊपर। तो पहले तो ये देखें किसमें हाइड्रोजन वाला, तो हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन में पार्शियल नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव एंड ब्रोमीन में पार्शियल नेगेटिव। दूसरी बात, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके पास तो है नहीं प्रोवाइड करे, ये रिंग प्रोवाइड करेगा ना इसको, ये डबल बॉन्ड इसको प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन। दिस इज राइट एंड फिर इसकी हेटेरोडेक्टिव फ्यूजन हो जाएगी, तो दिस इज द करेक्ट वन, जबकि दिस इज द रॉन्ग वन। ठीक है, ये इसको प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो बस यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ हेलोजेनिक एल्केन रिएक्ट SN1। SN1 कौन करता है? टर्शियरी। टर्शियरी की पहचान क्या बताई थी? सी के साथ Br लगाओ, CBr, ठीक है, और बाकी जो आपको 3 H लगे होंगे और R लगे होंगे, तो इसका फार्मूला होता है CBr। ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला में, लिखा होगा CH3 था। और अगर हमारे पास स्केलेटल आ जाए तो Br जो हमें लगा हुआ है उस कार्बन के साथ 3 डंडियां होंगी, तो आपके पास टर्शरी जो है एक ये है एक ये है, दोनों ही टर्शरी है, तो ये दोनों करेंगे। मैं लिख देता हूँ कि ये दोनों ही, ये भी टर्शरी था, ये भी टर्शरी था। इसमें 2 डंडियां आ रही हैं, ये सेकेंडरी है, इसमें 1 डंडी आ रही है, ये प्राइमरी है। सिमिलरली ये तो टर्शरी है जबकि ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। ठीक है, तो अगर वो SN2 कहता तो हमारे पास सी ऑप्शन हो जाता। अब SN1 कहा है तो ए इज द करेक्ट आंसर, टर्शरी होना चाहिए। 24, mixture of ethanol and methanol burn to produce this much carbon dioxide and this much water. अच्छा, ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, क्योंकि जितना वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई करेगी, जैसे होता है ना 1 मोल ऑक्यूपाई 24 डेसिमीटर क्यूब, सो दैट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। व्हाई? वाटर हैज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में वन डबल फोर्स है, तो उनका दोनों का जो है वॉल्यूम सेम नहीं होता। बहरहाल ये क्वेश्चन से कर दिया, तो हाई टेम्परेचर वो ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि एट अ हाई टेम्परेचर जो है वो सब जो है फोर्सेस ओवरकम हो जाती हैं, तो उसकी वजह से होता है। तो बस टेक्निकल तरफ को देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है। जब दोनों के वॉल्यूम की बात करें, जो मोल रेशो तो वही वॉल्यूम रेशो होती है। तो 35 एंड 55 में रेशो क्या बनती है? 35 एंड 55 में जो रेशो बन जाएगी वो बन जाएगी, इसको हम डिवाइड करें अगर 5 से, इसको भी 5 से, तो आपके पास 7 एंड 11 की रेशो बन रही है। इसने क्या किया है, इन दोनों को बंद किया, मिथेनॉल और इथेनॉल को दोनों को बंद किया। तो वो कह रहा है कि इनकी मोलर रेशो क्या होगी। दो वी हैव 2 वेज। अगर मैं इथेनॉल को जलाऊं, उसमें इथेनॉल एंड मिथेनॉल लिखा है, तो पहले इथेनॉल लिख रहा हूँ। C2H5OH होता है तो C2H6O होता है एक्चुअली। एंड सिमिलरली दूसरा जो हमारे पास वो होता है CH3OH होता है तो CH4O होता है एक्चुअली। इससे आपके बनेंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड और आपके बनेंगे 3 वाटर।
इससे हमें बनेगी एक कार्बन डाइऑक्साइड और बनेंगे 2 वाटर। ठीक है, एक तो इसका सिंपल सा मेथड ये है कि आप इसको कर लें किस तरीके से, आप इसको ऑप्शंस को अप्लाई कर दें इसके ऊपर और फिर जो है निकाल लें ट्रायल करके। तो अगर मैं इसको 1 लूँ, इसको 1 लूँ और इसको 3 लूँ तो क्या हिसाब किताब होगा? मैंने 1 लिया इसको तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इसको 3 दे दूँ तो बेटा ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। अब निकालते हैं इसको, ये दोनों मिला के कितने बने 5 और ये कितने बन गए 9। तो ये रेशियो जो है उसके साथ मैच नहीं कर रही, ऑप्शन ए गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, इसको 2 लिया मैंने तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इसको 3 कर दूं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। ऐसा करने से इट इज सॉरी 7, ये तो 7 आ गया, ये 12 आ रहा है, तो ये रेशियो भी उसके साथ मैच नहीं कर रही 7 11 के साथ। हटाते हैं, थर्ड ऑप्शन चलते हैं 3 से। इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और वो हो जाएगा 9। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। ऐसा करने से 8:13 की रेशियो बन रही है जो इसके साथ मैच नहीं कर रही। नेक्स्ट लास्ट वन पे 3 एंड 1, इसको 3 से कर दूं तो ये 3, ये 6 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 2 रह जाएगा। ऐसा करने से इट इज 7 एंड इट इज 11, ये रेशो मैच कर गई इसके साथ। तो एक तो ये हो गया रास्ता। लेकिन आपके पास थ्योरी में अगर आए तो मतलब इसका कोई रास्ता वैसे भी होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा मैथ्स आपकी अगर अच्छी है तो उसमें भी काम कर सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पर वही इक्वेशन जो है लिख रहा हूँ कि C2H6O will give you 2 CO2 and 3 H2O, जबकि CH4 methanol will give you CO2 and 2 H2O। लेट्स से इसके हमने यूज कर लिए x मोल्स, तो मेरे पास ये 2x बन जाएगा और ये 3x बन जाएगा। और इसके जो है मैं y मोल यूज करता हूँ तो ये y बन जाएगा, जबकि ये 2y बन जाएगा। अब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना दिया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी दिया है उसने और इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इसमें मेरे पास एक्चुअली बन रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35 आंसर इसका था, एंड यहाँ पर मेरे पास 3x प्लस 2y इसका आंसर 55 था। तो ये दो इक्वेशन बन गई मेरे पास। इनमें से ये वाली सिंपल लग रही है तो मैं y की अगर वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 35 माइनस 2x, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बन जाएगा 3x अपनी जगह पे रहेगा प्लस 2 इंटू 35 माइनस 2x लिख दिया मैंने एंड 55 कर दिया। यहां से 3x प्लस 70 माइनस 4x इज इक्वल टू 55। तो 3x एंड माइनस 4x मतलब माइनस x यहाँ से बचेगा एंड 55 माइनस 70 मतलब माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस x, माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में तो आपका बन जाएगा 2 इंटू 15 प्लस y इज इक्वल टू 35, 30 प्लस y इज इक्वल टू 35 एंड y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू आ रही है 5, उसकी आ रही है रेशो क्या बन गई थी, छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपके पास x रेशो y, x की वैल्यू आ रही है आपके पास 15, इसकी आ रही है 5, छोटी वैल्यू से डिवाइड करने पे 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3, ये आ जाएगा 1। वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x जो था आपके पास आपने लिया था इथेनॉल को, जबकि ये आपके पास था मिथेनॉल। ये दोनों तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन, इथेनॉल डाइक्रोमेट इथेनॉल बन गया, ऑक्सीडेशन, इथेनॉल सोडियम दिस, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस रिएक्शन।
द फॉर्मेशन ऑफ बोथ इथेनॉल एंड सोडियम इथोक्साइड आर रिडॉक्स रिएक्शन। ये ऊपर वाला तो रिडॉक्स था, आपको पता है। सोडियम मेटल आ गया ना, मेटल का मतलब एलिमेंट हो गया। अगर एलिमेंट आपको नजर आ जाए तो रिडॉक्स है कंफर्म। और इसमें आपके पास, आपको पता है कि इसमें साथ हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट तो चेंज हो रही है ना इसमें। यहाँ पर OH था तो +1 चार्ज था इसके ऊपर, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो दोनों रिडॉक्स हैं, आंसर हो गया। फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल एंड सोडियम रिजल्ट इन कलर चेंज। कलर चेंज ऊपर वाला करेगा, नीचे वाला नहीं करेगा, बोथ नहीं करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल इज कैटलाइज्ड बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट, नो। डायरेक्ट रिएक्शन होता है। सोडियम इथोक्साइड इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, नो, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Which compound positive test to 2,4-DNPH? तो this is aldehyde, this is, गौर से देख लें इसको, इसके साथ COOH भी लगा हुआ है, तो this is acid, and the next one if you want to see CO के साथ O आ रहा है, इसका मतलब ये एस्टर है, और 2,4-DNPH के साथ सिर्फ R करेगा, aldehyde या कीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि HCN सिलेक्शन करवाया इसका, कार्बोनिल कंपाउंड था। तो आपको पता है कि HCN कहाँ है, CN ये रहा, H इसका ये रहा। इसका मतलब ये पहले कंपाउंड कैसा था, CH3 था, C था, और ऊपर था C4NH9। यहाँ पर इसके पास एक O तो पहले से लगा हुआ था, और यहाँ पे एक्चुअली डबल बॉन्ड था। यही डबल बॉन्ड खुला है, और खुलने के बाद जो है CN जब आया था इसके ऊपर तो ये बॉन्ड खुल गया था, ठीक है, और फिर इसके पास अच्छा के लग गया था। तो ये शक्ल थी इसकी। सो दिस इज मैकेनिज्म, इज HCN ऐड कर रहे हैं। वैसे कार्बोनाइल में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और कंपाउंड कौन सा था आप देख लें, CO के साथ क्या चीज आ रही है, तो CO के साथ दोनों तरफ CC आ रहे हैं, कीटोन था। अगर एल्डिहाइड होता तो फिर एक जगह पे H लगा होता, यहाँ पर H लगा होता, ठीक है, तो फिर एल्डिहाइड होता है यहाँ पर या यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28, कंपाउंड Y treated with single reagent suitable condition 2-methyl butanoic acid। इसकी शक्ल बना लेते हैं पहले। ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन, ये एसिड हो गया, एंड 2 पे लगा देना मिथाइल ग्रुप, ठीक हो गया जी। पेंटेनॉन तो आपको पता ऑक्सीडाइज हो गया, एसिड तो नहीं बनाता ना। हाँ, 2-methyl ब्यूटेनॉल ये कर सकता है, ये ब्यूटेनॉल कर दिया, इधर मैंने मिथाइल कर दिया, इसकी ऑक्सीडेशन से ये बन सकता है डायरेक्ट 2-ब्यूटेनॉल। सॉरी, इसमें हमने गलत कर दिया इसको। ये कह रहा है 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे ब्यूटेनॉल लगा हुआ है, इधर एंड इधर। ये टर्शरी है, ये तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, टर्शरी होल है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। ब्यूटेन नाइट्राइल, अब यहाँ में नाइट्राइल में ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, उनमें से एक जो है वो CN है, एंड 2 पे लगा मिथाइल। इसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो इससे COOH बन जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। प्रोपेन नाइट्राइल से प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड नहीं बनेगा, हमें चाहिए था। एसिड था, एसिड जो अल्कोहल बनेगी तो प्राइमरी होगी। हाइड्रोलिसिस कर रहा है तो करने दे इसको, हमने यहाँ से कट कर दिया। ये वाला कार्बन जिस पर हाइड्रोजन नहीं है ये एसिड का है, और ये वाला कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन है ये ओल का है। तो इसको उतारो जरा साइड पे। इस कार्बन के साथ एक तो लगाया उसने H, 2 क्या लगा हुए CH3 एंड CH3, तो आपको पता है, और दूसरी तरफ से आपके पास CH3 एंड C डबल बॉन्ड O, तो ये बच गया था। तो आपको भेजना है किसको, H को एंड OH को, तो H यहाँ आएगा एंड OH यहाँ पे आएगा। इससे जो अल्कोहल बन रही है तो आप देख लें, इसको चेक कर लें, ये इससे 2 कार्बन लगे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। तो आंसर हो गया आपके पास सेकेंडरी, बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में IR दिया है इसमें। इस IR में जो 15 to 14 to 1700 पे यहाँ पे जो पीक आनी चाहिए थी CO की वो एब्सेंट है, और OH की पीक भी एब्सेंट है। तो हमें OH और CO वाले ग्रुप काटने इसमें से। ये CO जो है इसमें आ रहा है, पहले इसमें OH CO की पीक नहीं है, एंड CO की पीक नहीं है, एंड CO की पीक नहीं है। 3 ऑप्शन पे मेरे पास इनसे कट गए। कार्बोनाइल की पीक नहीं है इसमें, कहाँ होती है पीक, 14 to 1700 के दरमियान होती है। तो बस ऑप्शन एक बच गया, फिर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। OH की पीक है इसमें।
क्वेश्चन नंबर 31, फर्स्ट आईई के लिए कौन सी बात ठीक है? ऑलवेज एंड में ठीक है, हर डेफिनेशन में आता है एनर्जी रिक्वायर्ड डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप कम हो जाती है क्योंकि शील्डिंग फैक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन दूर हो जाते हैं, ट्रू। अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, ये बात गलत है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज कर रही होती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1 मोल ऑफ क्रोमेट इज रिड्यूस्ड। अच्छा जी, आपके पास टोटल कितने थे? 3 थे, इन 3 में से एक इसमें चला गया, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। नेट चार्ज हो गया -3, 4 ऑक्सीजन की वजह से हो जाएगा -8, एंड इसको कर दिया मैंने x, ठीक है। हम कोएफिशिएंट को नहीं काउंट करते बीच में, ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं तो इसकी आ जाती है +5, आ जाने दें। इधर आपके पास +3 है, तो आउट ऑफ 3 एक रिड्यूस हो गया, ये वाली बात सही है, ठीक है। तो आउट ऑफ 3 उनमें से एक रिड्यूस हो गया, 5 से 3 में जा रहा है, ये बात सही है। सेकंड वाले में 2 मोल था ऑक्सीडाइज, अच्छा इसको भी चेक करना पड़ेगा। नेट चार्ज -2, 4 ऑक्सीजन की वजह से -8, इट इज x, तो ये बन जाएगा मेरे पास +6, ठीक है। अब ऐसा करने से आपके पास जो है यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और आपके पास 2 ऑक्सीडाइज हो रहे हैं आउट ऑफ 3, तो 2 मोल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, तो ये बात भी सही होगी यहाँ तक। द लास्ट पॉइंट इज 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड। नाउ यहाँ से अगर यहाँ देखूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? तो मेरे पास एक कन्वर्जन हुआ है, 1 मोल इसमें कन्वर्ट हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे लाइन के लिए कुछ कलर यूज करता हूँ। इस कन्वर्जन में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, यहाँ पर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन का फर्क आ रहा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास अगर इसमें से आउट ऑफ 3 2 कन्वर्ट हो रहे हैं, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, 2 और 2 कितने हुए? 4 हो गए, तो ये कितने कह रहा है? 3 मोल्स कह रहा है, 3 नहीं हुए, 4 मोल्स हुए हैं ट्रांसफर। 2 लूज हुए हैं और सॉरी 2 लूज हुए हैं और 2 गेन हुए हैं, तो आपके पास 4 मोल्स इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे 3 मोल्स की वैसी बात गलत हो गई, तो आपके पास आंसर बन जाएगा इसका बी। डाइसैकेराइड हाइड्रोलाइज एसिडिक सॉल्यूशन, वेरी स्लो रिएक्शन था, अच्छी बात है जी। बारीक कैटलिस्ट एंजाइम को इसमें ऐड कर दिया, एसिडिक मिक्सचर सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज था। हाइड्रोलिसिस रिमेन स्लो फॉर सेक्रोज एंड माल्टोज बट नाउ मच फास्टर फॉर लैक्टोज, तो लैक्टोज के लिए वो एंजाइम था और कैटलिस्ट था, बाकियों पे काम नहीं कर रहा। कैटलिस्ट इंक्रीज एक्टिवेशन में टेम्परेचर बढ़ाता है, ये बात तो काटती है। कैटलिस्ट शो स्पेसिफिसिटी, यस ट्रू, वो स्पेसिफिक है किसके लिए? लैक्टोज के लिए, बाकियों पे काम नहीं किया था, ये बात सही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टिक लैक्टोज यूजिंग कैटलिस्ट हैज डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है, वो ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड कर देता है, तो लैक्टोज के ऊपर कैटलिस्ट के तौर पे काम किया था उसने, तो 2 and 3 सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, element X is solid under RTP, it occur contaminated fossil fuel, सल्फर हो गया, सीधा सीधा पकड़ा गया। इसका ऑक्साइड क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीनों पहचान ली हमने। कौन सी बात ठीक है? एटम ऑफ X हैज पेयर्ड p इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर जो है ग्रुप 6 का होता है, इसलिए इसकी कंफ्यूजन खत्म होती है P4 पे। जब P4 पे होती है तो पेयर्ड p तो होंगे ना इसमें, ये बात ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ X to Y कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। इस कन्वर्जन के लिए आपको पता है कि 2 हमने यूज किए थे, एक जो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, एक हमने NO2 यूज किया था, तो कैटलाइज्ड रिएक्शन है, तो कैटलिस्ट के बगैर नहीं होता। Z फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड, Z जो था सल्फर ट्राइऑक्साइड, पानी में ऐड कर देंगे तो ऑक्साइड ऑक्साइड मिला के लिख दें H2SO4। आई नो कि पानी में सही तरीके से मिक्स नहीं होता, लेकिन होता तो है ना, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बात भी ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच रीजन यूज्ड टू सोडियम क्लोराइड 5, ये बात कर रहा है NaClO3 की, कब बनता है? जब आप Cl2 को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन से वाले के साथ? हॉट के साथ, तो क्लोरीन एंड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ट्रू। क्लोरीन एंड कोल्ड, गलत, उसमें NaClO बनता है, ठीक है, 1 क्लोराइड बनता है, एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये भी गलत है, तो डी 1 ओनली, डी हो गया। Which statement help to explain increase in melting point sodium to aluminium, तो सोडियम और एल्यूमिनियम में फर्क क्या होता है कि सोडियम जो है एटॉमिक नंबर ये मैग्नीशियम 12 एंड एल्यूमिनियम जो है 13 होता है,
कंसेक्यूटिव है, ये ग्रुप 1 का है, ये ग्रुप 2 का है और ये ग्रुप 3 का है। अच्छा जी, इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की वजह, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, उसकी वजह क्या है? इसमें पॉजिटिव चार्ज 1 होता है, इसमें पॉजिटिव 2, इसमें पॉजिटिव 3 होता है। तो चार्ज और मेटल आयन इंक्रीजेस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मोर डीलेक्ट्रोलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, वही तो ग्लू के तौर पे काम करते हैं, ये भी सही है। एंड रेडियस ऑफ मेटल आयन डिक्रीजेस, ये बात भी सही है। कैसे सही है? इसमें आपके पास 11 प्रोटॉन्स हैं, इसमें आपके पास 12 प्रोटॉन्स हैं, इसमें आपके पास 13 प्रोटॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं। और इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं? इलेक्ट्रॉन इसके बाहर, इसके बाहर, इसके बाहर, इसके बाहर भी 10 रह जाएंगे, इसके बाहर भी 10 रह जाएंगे, इसके बाहर भी 10 रह जाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यहाँ पर काफी स्ट्रांग होगी फोर्स, यहाँ पर थोड़ी सी वीक होगी, यहाँ पर ज्यादा वीक हो जाएगी। तो फोर्स साइज जो है इनका, फिर इसका साइज छोटा हो जाएगा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो साइज भी इंक्रीज कर रहा है। ये तीनों फैक्टर्स काम करेंगे इस पे मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये दिया इसने और जो है बोला कौन सी बात ठीक है। ईच ब्रोमिनेटेड कार्बन इज कायरल। चेक करते हैं। असल में इसमें आपको कुछ पार्ट की सिमेट्री नजर आ रही है, कुछ भी नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन ये वाला पार्ट जो है हर किसी जगह पे सेम आ रहा है, सही है। अगर इस तरीके से देखा मैंने इसको, इधर से देखें तो आप ना, कैसे देखना था, ऐसे देखना। तो ये वाला पार्ट जो है हर किसी केस में तकरीबन एक जैसा आ रहा है। तो इसलिए जो है मैं इसको एक जगह पे काम कर लेता हूँ, तो बाकी 3 जगह से भी गैस हो जाएगा। इसको देखते हैं। इस तरफ एक बी आर हो गया, एक एच हो गया। इस तरफ आपके पास आ रहा है सी एच बी आर, जबकि इस तरफ आ रहा है सी एच टू। तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप हो गए। यहाँ से ये कायल हो गया। इसको देखते हैं तो इसके साथ इधर सी एच टू आ रहा है, जबकि इधर सी एच बी आर आ रहा है। और एक आपके पास बी आर हो गया, एक आपके पास एच हो गया। ये दोनों कायरल हैं। अगर ये दोनों कायरल हैं तो फिर इसका मतलब सारे ही कायरल हैं, सारे बी आर वाले कायरल हो जाएंगे। तो पहली बात सही हो गई। इसके बाद कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो चेक करेंगे बाद में। और सी सी बॉन्ड एंगल सारे सिंगल बॉन्ड है, तो 120 नहीं होगा, 109.5 होगा। तो अब आपको ऐसा करना हो तो जल्दी में, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, ये 1 ओनली भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी नहीं करनी है आपको, आपको थोड़ा सा काम करना है। तो मैंने खुद जल्दी की थी, जिसकी वजह से मैंने कहा कि थर्ड गलत हो गया तो 1 एंड 2 ले लेता हूँ, लेकिन मसला आ गया था मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो बी आर तो 6 आपको नजर आ रहे हैं। कार्बन काउंट करते हैं। कार्बन काउंट करते हैं तो आपके पास कार्बन जो है 1 हो गया। मैं किसी और कलर से कर लेता हूँ इसको साफ करके। ये वाली बात तो गलत हो गई, पहली वाली ठीक हो गई है। तो कार्बन काउंट करने के लिए मैं यहाँ पर कलर उठा लेता हूँ, कोई भी ये उठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कार्बन 12 पूरे हो गए। हाइड्रोजन की काउंटिंग करने जा रहे हैं। हाइड्रोजन काउंटिंग करने के लिए आपको पता है कि दोबारा वॉश करते हैं, इसको साफ करते हैं। आपको पता है यहाँ पे 3 डंडियां, तो यहाँ पे 1 एच होगा, जबकि यहाँ पे 2 डंडियां 2 एच होंगे, ठीक है। हम काउंट करना चाह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे, 10 11 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे, 14 15 हो जाएंगे, 16 17 हो जाएंगे एंड 18 हो जाएंगे। कोई गलती कर दी हमने क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला अब लगा ही देता हूँ मैं। एच यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, 1 1 और 2 एंड 2 एंड 1। अब दोबारा काउंटिंग करके देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 आ रहे हैं मेरे पास हाइड्रोजन। तो लेट मी क्रॉस चेक, इसको जरा देख के बताता हूँ आपको। जी, तो 37 ही आ रहे हैं, और सॉरी 18 ही आ रहे हैं हाइड्रोजन आपके पास। तो इसका मतलब C12 है, H18 है एंड Br जो है वो 6 आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। ब्रोमो इथेन, पहले पहचान में इसको कि एक आपके पास इथेन है, उसमें एक ब्रोमो लगा हुआ है। वो कह रहा है एलिमेंट सिलेक्शन करवाता है, और आपको पता है कि अल्कोहलिक और एक्वस दोनों में होता है। एक्वस में उसकी जगह पे Br की जगह पे OH आ जाता है। तो कह रहा है कि अगर वाटर ऐड करेंगे तो डायोल बन जाएगा। नो, डायोल तो नहीं बनेगा, कि ब्रोमीन लगा हुआ है, उसकी जगह पे ही OH आना था। तो दिस इज रॉन्ग।
इथेनॉल अगर यूज करेंगे तो इथीन बन जाएगा ट्रू, इसका Br चला जाएगा, इसका H चला जाएगा, तो यहाँ पे इसके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये वाली बात तो ठीक है। और अगर वाटर से करवाएंगे इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है, Br की जगह पे OH आ जाएगा। तो ये वाला भी सही हो जाएगा कि वाटर जब ऐड करेंगे तो Br की जगह पे OH आ जाएगा। तो 1 is wrong, 2 and 3 correct, C is the correct answer. The last question, इन कंपाउंड्स के बारे में कौन सी बात ठीक है, तो इनके नाम लिख देते हैं यहाँ पर। तो X इज कीटोन आपको नजर आ रहा है, दिस इज एल्डिहाइड, while this is acid. X react with alkyne iodine, true. अल्फा कार्बन के साथ CH3 का पीस आ रहा है, करेगा रिएक्शन। Y react with tolerant reagent, एल्डिहाइड है तो करेगा। does not react with alkyne iodine, ठीक है, एसिड तो एसिड भी करते हैं, तो सारी बातें सही होगी। A is the correct answer। लास्ट क्वेश्चन, इसमें अगर और से देखें तो दिस इज एक्चुअली एस्टर लिंकेज, राइट। ये कह रहा है कि 5 हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड रेडिली कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक कंपाउंड दिस। इसका मतलब कि इसके एक तरफ एसिड था और एक तरफ इसके हाइड्रोक्सी ग्रुप था, तो आप इस पे कंडेंसेशन हुई है, और कंडेंसेशन के लिए आपको वाटर रिमूव करना होता है, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए होता है, 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी चाहिए होता है, रिएक्शन भी रिवर्सिबल होता है, साथ पानी भी बनता है। तो डाइक्रोमेट चाहिए 9, water molecule is produced in this reaction through catalyzed by concentrated sulfuric acid. So C is the correct answer. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।